Hello students, today we are going to learn about Paralympics. In our previous video, we learnt about modern Olympic Games, ancient Olympic Games. So now we are going to learn about Paralympics. Paralympics are also a similar type of Olympic Games, but they are for people with disability. Paralympic Games are the world's largest multi-sporting event. Multi-sporting means that there are various sports events that are conducted in Paralympic Games as it is done in Olympic Games. So it is one of the largest sporting event for people with disability. Now, which kind of disability? It can be physical, visual, or intellectual disability. Paralympic Games was started by Sir Ludwig Guttmann. He was the fellow who started Paralympic Games. Now, initially what happened, the story behind the beginning of Paralympic Games. Officially, the Paralympic Games began in 1960, but unofficially it started in 1948. कैसे शुरू हुआ? The World War II victims जो भी थे उसमें, the disabled, they had lost somewhere some or the other limbs. तो उन disabled people को सर लुडिंग गटमैन ने अरेंज किया, सबको साथ में लाए और उनके लिए छोटे छोटे स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए. सो दैट इज़ हाउ द बिगनिंग ऑफ पैरालंपिक गेम्स स्टार्टेड. और 1960 में फिर ऑफिशियली पैरालंपिक गेम्स शुरू हो गए. नाउ ऑल पैरालंपिक गेम्स आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी. This is the Paralympic Committee is the world level international federation which controls the Paralympic Games. Now, it is also known as IPC in short. So, now we are going to use the abbreviation IPC. Now, IPC, that is International Paralympic Committee, was formed on 22nd September 1989. This is where the Paralympic Committee was formed, and it was the Paralympics then started organizing in a much better way. जैसे IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक गेम्स को कंट्रोल करती है, वैसे ही पैरा एथलीट्स के लिए, मीन्स पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए, पैरालंपिक गेम्स जो है वो IPC जो है वो कंट्रोल करती है. नाउ हेडक्वार्टर्स ऑफ IPC आर लोकेटेड इन बॉन. बॉन इज़ अ प्लेस इन जर्मनी. तो वहाँ पर उसके हेडक्वार्टर्स है. नेक्स्ट, IPC has the responsibility to organize summer and winter Paralympic Games. जैसे समर और विंटर ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, वैसे ही समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स होते हैं जो ओलंपिक गेम्स के बाद इमीडिएटली फॉलो किए जाते हैं. एंड एक्ट एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एट वर्ल्ड लेवल. वर्ल्ड लेवल पे एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस का काम करती है जो पैरालंपिक गेम्स को कंट्रोल करती है. नाउ द विजन ऑफ फॉर्मिंग दिस कमिटी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, इज़ टू चेंज द पब्लिक एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स द पीपल विथ डिसेबिलिटी. जनरली द पीपल विथ डिसेबिलिटी खुद के लिए भी उनका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, प्लस द पीपल, द अदर पीपल who are normal people, they also show sympathetic attitude towards them. जो समटाइम्स जो है
अनकंफर्टेबल फील कराता है पीपल विथ डिसेबिलिटी को. एंड दिस वॉज वन दैट they have to change the attitude, the mindset of the people needs to be changed. So that was the one basic idea behind the formation of IPC. Second thing was that to enable para-athlete means people with disability, those sports person who are disabled, they are known as para-athlete. So to enable para-athlete to achieve sporting excellence, उनको भी एक रिकॉग्निशन मिले, इसलिए उनको इंस्पायर करने के लिए, और एक रिकॉग्निशन उनको वर्ल्ड में मिले जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मोरल कहीं पे डाउन हो गया है, वो बढ़े. तो इसके लिए ये एक विजन के साथ IPC जो है वो बनाया गया था. नेक्स्ट, द पैरालंपिक गेम्स are organized in parallel with Olympic Games. जनरली पहले ओलंपिक गेम्स होता है और उसके बाद जो है वो पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है. Since then it is held after every 4 years. हर 4 साल के बाद 1960 ऑफिशियली द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वेर हेल्ड. उसके बाद जो है वो आफ्टर एवरी 4 years द पैरेलल टू ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया. विंटर पैरालंपिक गेम्स, द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन 1976. तब तक जो है वो समर पैरालंपिक्स ही ऑर्गेनाइज होता था. 1976 से फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइज किया गया. सिंस देन पहला वो जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो स्वीडन में हुआ था. सिंस देन इट इज़ हेल्ड आफ्टर द इंटरवल ऑफ एवरी 4 years. उसके बाद हर 4 साल के बाद वो ऑर्गेनाइज किया जाने लगा. नाउ कैन सी द 3 crescent shape symbol. This is the symbol of Paralympics. It is known as Paralympic symbol. जो रेड, ब्लू और ग्रीन में आप सिंबल देख रहे हैं उसको पैरालंपिक सिंबल बोला जाता है. नाउ द मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम्स इज स्पिरिट इन मोशन. जैसे IPC वी हैव स्टडीड द विजन ऑफ IPC, सो टू लिफ्ट, टू इंस्पायर द पैरा एथलीट. सो द मोटो इज स्पिरिट इन मोशन. नेक्स्ट इज symbol of Paralympic game. They have 3 crescent shape, as you can see, 3 asymmetrical crescents, and the color of them is red, blue and green. So that is Paralympic symbol. You might have seen the Olympic symbol also. They are in the form of rings. So that also we'll discuss later in the chapter. So this is the Paralympic symbol. Next is the opening ceremony. जैसे ग्रांड लेवल पे ओलंपिक गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी होता है, द सिमिलर वे देयर इज ऑल्सो अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैरालंपिक गेम्स ऑल्सो. नाउ द ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट्स विथ द होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग ऑफ द होस्ट नेशन. जो होस्ट कंट्री होता है उसका फ्लैग होस्ट किया जाता है, एंड देन द नेशनल एंथम इज संग. नेशनल एंथम होस्ट कंट्री का गाया जाता है. आफ्टर द नेशनल एंथम द एथलीट परेड, मार्च पास्ट उनका होता है. द एथलीट परेड इनटू द स्टेडियम, ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेशन. हर एक नेशन अपना अपना ग्रुप बनाकर, जो पार्टिसिपेंट है, जो एथलीट है, फ्लैग बियरर उनके आगे रहता है, और वो पूरा ग्रुप जो है वो मार्च पास्ट करता है इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम. इन समर पैरालंपिक्स द एथलीट्स एंटर द स्टेडियम बाय नेशन in alphabetical order according to the host country chosen language.
जो भी होस्ट कंट्री होता है वो अपना एक लैंग्वेज चूज़ करता है और उसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में हर एक नेशन खड़े रहते हैं और वो मार्च करते हैं. नाउ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस सीक्वेंस, जो होस्ट कंट्री रहता है, द होस्ट कंट्री ऑलवेज एंटर्स एट द एंड इन द मार्च पास्ट. हमेशा होस्ट कंट्री जो होगा वो मार्च पास्ट में सबसे लास्ट में एंटर करता है. नाउ आफ्टर दैट स्पीच एंड वेरियस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर हेल्ड. नाउ दिस इज फॉलोड बाय लाइटिंग ऑफ द टॉर्च. लाइटिंग ऑफ द टॉर्च सेरेमनी होता है, ठीक है. एंड ऑफिशियली फिर अनाउंस किया जाता है दैट द गेम्स आर ओपन नाउ. सो उसके बाद फिर जो है वो स्पोर्ट इवेंट्स शुरू किए जाते हैं. Now after that all the event starts. Now when all the events, the closing ceremony of Paralympic games takes place after the conclusion of entire sports events. सारे sports events ख़त्म हो जाए उसके बाद closing ceremony शुरू होता है. Now flag bearers, in closing ceremony all the flag bearers enters the sports arena followed by all the participants and they did not come in the group. जो opening ceremony में जैसे वो आए थे group wise अपने nation को represent करते हुए अपने nation के group के साथ, they did not come in that way but they should follow the फ्लैग बियरर्स. फ्लैग बियरर्स एक लाइन से आएंगे और उनके पीछे सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे और स्पोर्ट्स एरिना में इकट्ठा होंगे. द फ्लैग, द पैरालंपिक फ्लैग इज टेकन आउट एंड अगेन द नेशनल फ्लैग ऑफ द होस्ट नेशन इज होस्टेड और उसके बाद नेशनल एंथम प्ले किया जाता है. ऑफिशियली द कंक्लूजन ऑफ जो पैरालंपिक फ्लेम है उसको बुझाया जाता है और पैरालंपिक गेम्स आर क्लोज्ड करके ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है. इवन बिफोर दैट अनाउंसमेंट के पहले द होस्ट नेक्स्ट होस्ट नेशन कौन है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी या इवेंट्स भी उसके साथ किए जाते हैं अनाउंसमेंट के साथ. Now, more important point is the categories of disability. कौन कौन से disability category जो है वो participate कर सकते हैं Paralympic Games में. Now, Paralympic athletes के लिए कोई specific age नहीं होता. There is no age limit in that. But generally जो है वो 17 to 30 years of para athlete are participating in Paralympic Games. Category wise अगर हम देखें तो there are 6 major categories into which 6 different categories है या groups है जिसमें पैरा एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं. फर्स्ट इज इम्पेयर्ड मसल पावर, वो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी में ही आ जाता है. देन इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है. देन लॉस ऑफ 1 or more limbs, that is complete physical disability. Leg length inequality, that is also a group. Dwarfism, dwarf stature, जिनका हाइट नहीं बढ़ता बिल्कुल भी. विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको देखने में एक लिमिट में दिक्कत है. एंड एथलीट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन टेक पार्ट इन पैरालंपिक गेम्स. एथलीट जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज इनटू विच द पैरा एथलीट्स, इस डिफरेंट कैटेगरीज में पैरा एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं पैरालंपिक गेम्स में. नाउ सम ऑफ द स्लैंग फीचर्स ऑफ पैरालंपिक गेम्स. जो लास्ट समर ओलंपिक्स, समर पैरालंपिक्स हुआ था
वो हुआ था सितंबर 2016 में इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। और विंटर पैरालंपिक्स हुआ था मार्च 2018 योनचैंग, साउथ कोरिया में। तो इसमें भी जैसे ओलंपिक गेम्स में समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का अंतर होता है, तो समर और विंटर पैरालंपिक गेम्स में भी 2-2 साल का अंतर होता है। काफ़ी सारे रीजंस हैं उसके लिए। एक तो एथलीट्स को प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिल जाता है, इनफ टाइम मिल जाता है, प्लस जो आईपीसी है उसको तैयारी करने के लिए दोनों इवेंट के बीच में, क्योंकि मेगा इवेंट है, वर्ल्ड लेवल के इवेंट है, तो तैयारी करने के लिए भी उनको बहुत सारा समय मिल जाता है। और एक फाइनेंशियल रीज़न भी है कि उनका फंड्स जो है वो भी आता रहता है अगर हर 2 साल पे इस तरीके के मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाए। नेक्स्ट, टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स। जैसे समर ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ है नेक्स्ट साल के लिए, तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स आर ऑल्सो पोस्टपोन ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस। उसकी वजह से जो अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, उसी की वजह से जैसे टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ है, सिमिलरली द पैरालंपिक्स आर ऑल्सो पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट ईयर। The Winter Paralympics will be held in 2022 in Beijing, China. So these are the various slang features regarding the Paralympic Games. Now let us see some of the important athletes. First is Deepa Malik. You can see her picture. She is a shot put player. So in 2016 Summer Paralympic Games, which was organized in Rio de Janeiro in Brazil, Deepa Malik won a silver medal in shot put, and she was the first Indian woman to win medal in Paralympic Games. Paralympic Games में वो पहली भारतीय बनी 2016 में जिन्होंने भारत के लिए मेडल लाया पैरालंपिक गेम्स में। इसके अलावा 3 और जने थे जिन्होंने मेडल्स लाए थे पैरालंपिक गेम्स रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। सो जस्ट फाइंड इट आउट एंड टेक्स्ट मी दैट हु वेयर द अदर 3 जिन्होंने मेडल्स लाए थे 2016 पैरालंपिक गेम्स रियो डी जेनेरियो में। दैट इज माय क्वेश्चन एंड होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज मुरलीकांत पेटकर। 1972 का ये स्विमर है जिन्होंने एंड इज द इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन पैरालंपिक गेम्स। ही वॉज अ स्विमर। यू कैन सी हिज फोटो रिसीविंग द अवार्ड। सो मुरलीकांत पेटकर, एन इंडियन स्विमर, India's first gold medalist in 1972 Paralympic Games, which were held in Germany. So these are the important thing about Paralympic Games. So that's all for today. If you still have any doubt, students, you can directly tell your doubts in the group by texting the message. I hope that everything is clear to you. Thank you.